अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 22 रबी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नज़र का लग जाना बरहक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबखत ले जा सकती है तो वो नज़र है। जब भी नज़र के इलाज के लिए गुस्ल करने को कहा जाए तो गुस्ल कर लो। और अब सुर्खियां। टीआरएस कारकुनों का एमपी अरविंद के घर पर हमला महज बालादस्ती दिखाने के लिए किया गया, एमपी अरविंद का इल्जाम। मनमानी रिमार्क्स पर चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, एमपी अरविंद के खिलाफ एमएलसी कविता का पलटवार। करनूल में बाबू को तल्ख तजुर्बा, आमद के खिलाफ वकीलों ने दिया धरना, हालात कशीदा। विक्रम एस रॉकेट की खला में परवाज, 3 गुना वजन के साथ मुल्क की खानगी रॉकेट ने इसरो से भरी उड़ान। और अब तफसील। टीआरएस की एमएलसी और केसीआर की बेटी कविता ने उनके खिलाफ इल्जाम तराशी करने पर बीजेपी एमपी डी अरविंद को सख्त वार्निंग दी है। कविता ने उनकी कांग्रेस में शमूलियत के ताल्लुक से अरविंद के बयान की मजम्मत की और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने और बेहुदा रिमार्क्स करने पर सख्त लबो लहजे में बीजेपी एमपी को वार्निंग दी है। कविता ने कहा कि उनके खिलाफ बेहुदा बातें की जाती है तो वो चप्पल से मारेंगी। ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాం అని అర్థమైంది కాబట్టి చెప్పడానికి వచ్చిన. ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడను జీవితంలో. కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా. ఎక్కడన్నా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో, కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు. కాబట్టి అలా చెప్తున్నా, ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అడ్డమైన కూతలు కూస్తే చెప్పు తీసుకొని నిజామాబాద్ చివరస్తాలో కొడతా బిడ్డ. ఏమనుకుంటున్నావు? అన్పార్లమెంటరీ అనుకోండి, ఇంకోండి 16 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో చాలా ఓపికతో పేషెన్స్తో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇవాళ ఇంత మాట నా చేత అనిపించిందంటే వాడు ఎంత చీప్ ఫెలోనో మీ అందరూ ఆలోచన చేసుకోండి. తెలంగాణ ప్రజలకు నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నందుకు. కానీ తప్పక ఆవేదనతోని బాధతోని ఒక ఆడబిడ్డనైనా రాజకీయాల్లో డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి. నన్ను చూసి 10 మంది ఆడపిల్లలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నా కానీ ఎవరు కూడా వెనక్కి పోవద్దు అనుకున్నా. నేను ఇవాళ ఇంకో విషయం కూడా నేను చెప్తున్నా, అడగండి ఖర్గే గారిని. ఇంతమంది ప్రెస్ మిత్రులు ఉన్నారు కదా, నేను ఫోన్ చేసిందేమో అడగండి ఖర్గే గారిని. ఖర్గే గారు మాకు పార్లమెంట్లో తెలుసు, మాలాంటి ఫస్ట్ టైం పార్లమెంట్ మెంబర్లు అందరినీ కూడా దగ్గరికి కూడేసుకొని మాట్లాడి ఆయన అనేక విషయాలు చెప్పేటోడు. ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, అందరితో ఉంటుంది, 100 మందితో ఉంటుంది. ఈలాగా పిచ్చోళ్ళతోని వారు మాట్లాడరు. మంచోళ్ళతోని పాలిటిక్స్లో పొలైట్గా ఉండేటోళ్ళతో అందరు మాట్లాడతారు. ఇంకొకసారి మాత్రం లైన్ దాటితే ఊరుకోము, కొట్టి కొట్టి సంపుతామని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తాను. निजामाबाद के बीजेपी एमपी डी अरविंद का वो बयान सुनते हैं जिसमें अरविंद कुमार ने टीआरएस एमएलसी कविता पर इल्जामात लगाए। कविता ने कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश की। कविता को केसीआर ने बीआरएस से दूर क्यों रखा, ऐसे रिमार्क अरविंद ने किए हैं। कविता ఆమెను తీసుకుపోలే కదా, నేను అద్దననా? టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు మార్చే దాంట్లో కార్యక్రమంలో బిడ్డను ఎందుకు తీసుకురాలి? సంతోషరావుని ఎందుకు తీసుకురాలి? ఏం సార్, నమస్తే తెలంగాణ గారు, మీరన్నా అడగాలి కదా ఎందుకు కావాలి అని. తీసుకురాకపోతే ఆమె అలిగింది. తెల్లాలి మల్లికార్జున ఖర్గేకి ఫోన్ చేసింది. వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ సీనియర్ ఆఫీస్ బేరర్ నాకు ఫోన్ చేసిండు. అగో మీ దోస్తు మా ఖర్గే సార్ ఫోన్ చేసింది, మా కాబోయే అధ్యక్షుడికి ఫోన్ చేసింది, కాంగ్రెస్లో కత్తదాట అన్నది. సార్ అన్ని ఉట్టి మాటలు అయ్యని భయపట్టిస్తున్నదని చెప్పిన. అది ఆమె ఫోన్ చేసినట్టు వాళ్ళ అయ్యకి లీక్ ఇచ్చింది, వాళ్ళ అయ్య లాగుదడిచింది. మా ములాయం సింగ్ యాదవ్ చనిపోతే ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తానికి సంకలు వేసుకొని పోయిండు. ఆ పోయేటప్పుడు మెట్లెక్కేటప్పుడు కూడా ఫ్లైట్ మెట్లే పక్కకే ఉంచుకున్నాడు ఫోటోలలో వాడాలని. నా ఎంబడినే ఉన్నది నా బిడ్డే అని చూపెట్టుకొని ఆడ లక్నోలో 4 ఫోటోలు దింపి ఇక పీకిడికి వెళ్ళి వీకు ఢిల్లీలో ఉంటున్నాను నేను 5 రోజులు ఈ ఉండొద్దు నువ్వు అని పంపించేసిన హైదరాబాద్.
टीआरएस एमएलसी कविता के खिलाफ शदीद रिमार्क करने वाले बीजेपी एमपी अरविंद कुमार के घर पर टीआरएस कारकुनों ने हमला कर दिया। अरविंद के घर में घुसकर उनके मकान की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद एमपी अरविंद के घर के पास हालात कशीदा हो गए। बताया जाता है कि हमले के वक्त बीजेपी एमपी घर में मौजूद नहीं थे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत ने सनतों के क़याम में हौसला अफजाई की है और बिला रुकावट और आसानी के साथ कंपनियों के क़याम में मदद की है। केटीआर हैदराबाद में खुर्दनी तेल और तेलों के तुखम के मौजू पर मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। When the new state of Telangana came into being in 2014 June, the first piece of legislation that we have enacted is the TS-IPAS, which basically stands for the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. What that means is, for instance, if Imami wanted to launch a new edible oil factory in Telangana, I'm pitching to you, Mr. Desai, in case you know. If you wanted to start a new factory in Telangana, you do not need to meet any minister, any bureaucrat. You don't need to meet Mr. Reddy or myself or anyone in the bureaucracy. As long as you comply with the law of the land, as long as you believe that you are in compliance with the law of the land, you can actually hit the ground running. You can start construction of your factory on day one. Mr. Chowdhury of Gemini Edible Oils, the Freedom Group, is here. He's chosen to invest in Telangana. He's investing about 300 crores or 500 crores of rupees. And he's chosen recently to announce this lovely factory of his right here. हिंदुस्तान में पहली बार फार्मूला ई रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हैदराबाद में मुनाकिद हो रही है। हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे ये रेस मुनाकिद की जा रही है, जिसके लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रैक तैयार किया गया है। ये रेसिंग मुकाबले आने वाले साल 11 फरवरी से मुनाकिद होने वाले मुकाबलों की ट्रायल रन के तौर पर कल और परसों हुसैन सागर के रास्तों पर मुनाकिद किए जाएंगे, जिसके सबब एनटीआर मार्ग पर ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। बरखी से चलने वाली सिंगल सीटर कार का दुनिया में रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में बरखी कारों के ये मुकाबले पहली बार मुनाकिद किए जा रहे हैं। फिलहाल लंदन, न्यूयॉर्क, रोम, बर्लिन, सिविल ममालिक में ये फार्मूला ई रेसिंग मुनाकिद किए जाते हैं, लेकिन इस बार ई रेसिंग मुकाबलों की फहरिस्त में हैदराबाद भी शामिल होने जा रहा है। तजदीदी तवन्नाई की कंपनी ग्रीन को के ताउन से तेलंगाना हुकूमत फार्मूला ई रेसिंग मुकाबलों का हैदराबाद में इनेकाद कर रही है। कसीनो केस में ईडी ने जांच तेज कर दी है। इस ज़िमन में टीआरएस एमएलसी एल रमना ईडी के रूबरू हाजिर हुए हैं। इस केस में अब तक तलसानी ब्रदर्स से ईडी ने पूछताछ की है। फीमा कवायद की खिलाफ वर्जी, मनी लैंडरिंग, हवाला मामलतों से मुताल्लिक़ पूछताछ की गई। इस केस में ईडी ने 18 अवामी नुमाइंदों को नोटिस जारी की है। इस केस में मजीद फिल्मी और सियासी शख्सियतों को नोटिस रवाना किए जाने का इम्कान नजर आ रहा है। दवा खाने के बाद एक शख्स की मौत होने का इल्जाम लगाते हुए अस्पताल के रूबरू एहतजाज करने का वाकया यादाद्री भोंगिर जिले में पेश आया है। तोरजोपल्ली मंडल के बोधम टांडा से ताल्लुक रखने वाले लचीराम नायक की सेहत खराब हो जाने पर उसे मुकामी खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज की तशखीस करके उसके लिए दवाएं लिख दी। महलूक के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर की दवा से ही मरीज की मौत वाक़ई हुई है और अस्पताल के रूबरू एहतजाज शुरू कर दिया। వారం కింద వస్తే 2 జాగ్రత్తగా క్యాన్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ ఎక్స్రే చూపిండు, మూత్రం పంచ అని అన్ని చెప్పిచ్చిండు. అయితే ఏం లేదు, అల్సర్ ఉందని గోలి మందు ఇచ్చిండు, తానికా ఇచ్చిండు, గోలి ఇచ్చిండు. లచ్చిరామ్ గోర్బండి మీద చేస్తాడు దేవర్. ఈ రోజు గోలి అయిపోయింది, గోలి తీసుకురామని అని వచ్చినాము. వస్తే మధ్యాహ్న 1 అయింది ఇక్కడ వచ్చినాక. అయితే గోలి తీసుకున్నాం, 2 సూది వేపించుకున్నాం. మళ్ళీ ఇంటికాడ పోయి జరసేపు అనుకున్నాడు, మళ్ళీ గోలి వేసుకున్నాడు. ఆడ కూర్చుంటూ పడ్డాడు. గోలి వేస్తున్నాగానే పడ్డాడు. పరిశ్రమలో మా కొడుకు చెప్పిండు, ఫస్ట్ వారంలో మా కొడుకు చెప్పించిండు, ఆ రిపోర్ట్ మీదనే గోలి ఇచ్చిండు. करनूल दौरे के दौरान बाबू को कदम कदम पर एहतजाज का सामना है। रायलसीमा का गद्दार करार देते हुए तलबा तंजीमों ने चंद्रबाबू नायडू के काफिले के सामने धरने पर
बैठ गए बाबू वापस जाओ के नारे लगाए, सिया झंडिया और एहतजाजी प्लेकार्ड्स के साथ मुजाहिरे किए। रायलसीमा की तरक्की के मुखालिफ बाबू को वापस जाओ के नारे बुलंद किए। झूठ बोलना और धोखा देना बाबू की फितरत में शामिल है। कर्नूल के वकीलों ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रायलसीमा के साथ नाइंसाफी करने वाले बाबू को कर्नूल के दौरे का कोई हक हासिल नहीं है। गैर मरकूज तरक्की और कर्नूल को कानूनी सदर मुकाम बनाने से मुतालिक वकीलों ने बाबू से मौक़िफ़ का ऐलान करने का मुतालबा किया। ఏదో 14 ఏళ్ళు శ్రమ పట్టు శ్రమ ఏదో పరిశ్రమ అంటాడు. ఏం చెప్పి పొడిచాడో ఈ రాయలసీమ జిల్లాలో ఏమీ చేయలేకపోయాడు. పోనీ కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయితాను కొత్త రాష్ట్రానికి అన్నాడు. ఇక్కడ ఫానర్లు మరలు ఎత్తుక్కుంటున్నా అన్నాడు. సరే ఏదో అనుభవం ఉందేమో అని అవకాశం ఇస్తే 2014లో ఏం చేశాడు? ఏమీ చేయలేకపోయాడు. అక్కడ రాజధాని ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ రాజధాని తీసేశాక మేమంతా అదే అనుకున్నాం. మళ్ళీ కర్నూలు రాజధాని పెడతాడు, గుంటూరులో హైకోర్టు పెడతాడు అనుకున్నాం. కానీ అది చేయలేదే. గుంటూరులో హైకోర్టు పెట్టకపోగా రాజధాని కూడా కర్నూలు నుంచి అక్కడ తీసుకుపోయాడు. అంత దుర్మార్గుడు రాయలసీమకు। मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ेपल्ली गुड़े में मुनक़िदा घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में एपी के नायब वज़ीर आला के सत्यनारायणा ने शिरकत की। घर घर जाकर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने बताया कि जगन की हुकूमत में अवाम मुतमईन है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि साबिक़ हुकूमत के क़ायदीन अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की खातिर जगन हुकूमत पर तनक़ीदें कर रहे हैं। నలుగురికి 1,80,000 రూపాయలు హౌస్ లోన్ శాంక్షన్ చేసి కట్టుకోమన్నాం. దాంట్లో ఒక ఆవిడకేమో బెంగళూరు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రొద్దుతిరిగి వెళ్ళి వచ్చిన ఆవిడకి రైస్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చేయమన్నాం. అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పారదర్శకత, ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందని చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాను. ఇది నేనేదో సీక్రెట్గా అడిగితే చెప్పింది కాదు. పబ్లిక్గా పాత్రికేయ మిత్రులందరి సమక్షంలోనూ వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు. అంటే అటువంటి కుటుంబాలకి మాట మాత్రంగానే ఇక్కడికిక్కడ ఆదేశాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతున్నాం. नेल्लोर के मदरसे नूरुल हुदा में तबलीगी जमात का 2 रोज़ा इज्तिमा मुनाकिद किया गया, जिसमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। इस इज्तिमा में हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए थे, जिसके इंतजामात की निगरानी साबिक़ वज़ीर अनिल कुमार यादव और मुकामी MLA कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने की। जमात तकरीबन 100 साल से ज़्यादा ये इंसानों को इंसानियत पर लाने की एक मेहनत है, जो दुनिया में अच्छे ज़िंदगी गुजार के आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेहनत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगम्बरों के ज़रिए से अल्लाह ने फरमाई। और उसी मेहनत को हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांधरवी रहमतुल्लाहि अलैह ने दिल्ली से शुरू किया, मेवात वालों पर मेहनत किया। होते हवाते पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेहनत चालू हो गई, जिसके ज़रिए से करोड़ इंसान गलत ज़िंदगियों से बचकर सीधे रास्ते पर आ गए और चोरी से, डकैतीपन से और जानी जिना से गंदे किस्म की ज़िंदगी गुजारने वाले अच्छे ज़िंदगी गुजारने वाले बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ इंसान सीधे रास्ते पर आ गए। हिंदुस्तान का पहला खानगी तौर पर तैयार करदा रॉकेट विक्रम एस कामयाबी के साथ मदार में दागा गया। श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से इस रॉकेट को दागा गया। हैदराबाद की स्काई रूट एयर स्पेस ने इसरो और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के इश्तराक से ये रॉकेट दागा है। आंध्र प्रदेश के एन स्पेस टेक इंडिया, चेन्नई के स्पेस किट्स और अमेरिका के बुजुम क्यू स्पेस रिसर्च लैब ने रॉकेट तैयार किया है। ये रॉकेट 79.5 किलोग्राम का है। Worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members,
and thank various centers of ISRO for the mission readiness and launch clearance. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. दिल्ली में दहशतगर्दी के खिलाफ वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। दहशतगर्दी के लिए मालिया नहीं इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम नौयत के दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा नौयत के इक़दामात और मजम्मत किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि कई दहों से मुख्तलिफ नौयत की दहशतगर्दी को मुख्तलिफ नामों और शक्लों के साथ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हजारों लोग दहशतगर्दी की नजर हुए, लेकिन बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया। राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा विनायक सावरकर के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने मुजाहिदीन आज़ादी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ दगा की और अंग्रेज़ों को मुआफ़ीनामा लिखा था और सावरकर ने अंग्रेज़ों की मदद की। उन्होंने सबूत के तौर पर सावरकर का तहरीरी मुआफ़ीनामा भी पेश किया। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया, यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हलीफ शिवसेना ने सावरकर पर राहुल गांधी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया। राहुल गांधी के मौक़िफ़ पर शिवसेना एमपी संजय राउत ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है, वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वेलिंगटन में T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया। पहला मैच देखने आए मद्दाहों को मायूसी हुई। हिंदुस्तानी मद्दा आलमी कप की हार को भुलाकर हिंदुस्तानी टीम से सीरीज में बेहतर मुजाहरे की तवक्को कर रहे हैं। सैकड़ों हिंदुस्तानी मद्दा T20 सीरीज से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। आई थिंक हम ये कह रहे हैं कि बस वी आर लुकिंग फॉर द टीम ऑफ द फ्यूचर, और जो भी वर्ल्ड कप T20 में हो गया उसको पीछे रख के नई टीम बिल्ड करें, एंड दिस इज द टीम विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सोशल मीडिया के बेताज बादशाह ट्विटर ने मुलाजिमीन को एक और झटका दिया है। ट्विटर की दफातर को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि तमाम दफातर की इमारतें और उनमें बैज रिसाइज सिस्टम गैर कारकर्द रहेगा। 21 नवंबर को ऑफिस दोबारा खोलने की मुलाजिमीन को खबर दी गई है। इस ज़िम्मन में मुलाजिमीन को ट्वीट करदा एक मकतूब इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया है। कंपनी वाजे कर रही है कि कंपनी पॉलिसी की पासदारी करें और कंपनी की खुफिया जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर न करें। ट्विटर बंद करने के पीछे क्या असबाब हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ज्यादा देर तक काम करने की एलन मस्क ने नई शर्त के बाद सैकड़ों मुलाजमीन कंपनी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी वजह से ट्विटर को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किए जाने की भी खबर है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
टीआरएस कारकुनों का एमपी अरविंद के घर पर हमला महज बालादस्ती दिखाने के लिए किया गया, एमपी अरविंद का इल्जाम। मनमानी रिमार्क्स पर चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, एमपी अरविंद के खिलाफ एमएलसी कविता का पलटवार। करनूल में बाबू को तल्ख तजुर्बा, आमद के खिलाफ वकीलों ने दिया धरना, हालात कशीदा। विक्रम एस रॉकेट की खला में परवाज, 3 गुना वजन के साथ मुल्क की खानगी रॉकेट ने इसरो से भरी उड़ान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।